بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپٹیکل ایکٹیویٹی۔ آپٹیکل ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، آپٹیکل آئسومرس کیا ہوتے ہیں؟ تو جیسے میں نے پریویس لیکچر میں کئی چیزیں مینشن کی تھی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسٹیریو آئسومرس ہوتے ہیں یا اسٹیریو آئسومیرزم ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں آئسومر کا مالیکولر فارمولا، اسٹرکچر فارمولا سیم ہوتا ہے، صرف یہ کہ 3 ڈائمینشن اسپیس کے اندر ان دونوں آئسومرز کے ایٹم کی ارینجمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کائرل سبسٹانسز کیا ہوتے ہیں؟ تو جیسے اس ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کاربن کا ایٹم جو ہے وہ 4 ڈفرینٹ گروپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، جیسے یہ کاربن ہے، سینٹر میں ہے، اور اس کے ارد گرد یہ 4 ڈفرینٹ گروپ اٹیچ ہیں، تو اس کاربن کو ہم ایسیمیٹرک کاربن کہتے ہیں، اور ایسے سبسٹانسز جو ہے ان کو ہم کائرل سبسٹانسز کہتے ہیں۔ اب کائرل سبسٹانسز بیسیکلی آپٹیکل آئسومیرزم شو کرتے ہیں، یعنی اگر مالیکیول کے اندر کائرلٹی ہے، ایسیمیٹرک کاربن ایٹم موجود ہوں، تو ایسے سبسٹانسز جو ہے وہ آپٹیکل آئسومیرزم شو کرتے ہیں۔ اب آپٹیکل آئسومیرزم کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ جیسے آپٹیکل آپ جانتے ہیں لائٹ کو کہتے ہیں یا لائٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو کہتے ہیں، تو بیسیکلی یہ آئسومرز لائٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہم کون سی لائٹ استعمال کرتے ہیں؟ اس لائٹ کو ہم کہتے ہیں پلین پولرائز لائٹ۔ اب آرڈنری لائٹ اور پلین پولرائز لائٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو عام لائٹ ہے، بلب کی لائٹ یا عام لائٹ ہے، اس کی جو ہمارے پاس ویوز ہوتی ہے وہ تقریباً ہر ڈائریکشن میں ٹریول کرتی ہے، جیسے یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں۔ جیسے اگر ہم کمرے کے اندر کوئی بلب لائٹ کرتے ہیں تو ہر طرف ہمیں روشنی نظر آتی ہے، تو عام لائٹ یا کامن لائٹ یا آرڈنری لائٹ وہ ہوتی ہے کہ جس کی ویوز جو ہے وہ تقریباً ہر ڈائریکشن میں ٹریول کرتی ہے۔ اور ایک یہ والی لائٹ ہے جس کو ہم پولرائز لائٹ یا پلین پولرائز لائٹ کہتے ہیں۔ تو پلین پولرائز لائٹ یا پولرائز لائٹ وہ ہوتی ہے کہ جس کی ویوز صرف ایک ہی ڈائریکشن میں ٹریول کرتی ہیں، اس وجہ سے ہم اسی کو یونی ڈائریکشن لائٹ بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہم بناتے کس سے ہیں، حاصل کس چیز سے کرتے ہیں؟ تو یہ ہم عام لائٹ کو، یعنی آرڈنری لائٹ کو جب ہم نائکول پرزم میں سے پاس کرتے ہیں تو یہ عام لائٹ جو ہے یہ پولرائز لائٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی یونی ڈائریکشن میں آ جاتی ہے۔ پولرائز لائٹ کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے ہم اس طرح کے کائرل سبسٹانسز رکھتے ہیں، جیسے یہ دونوں کائرل ہیں، یہ بھی کائرل ہے، یہ بھی کائرل ہے، یا ان کائرل سبسٹانسز کا سولوشن ہم رکھ لیتے ہیں، تو کچھ کائرل سبسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس پلین پولرائز لائٹ کو رائٹ کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں، اور کچھ سبسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس پلین پولرائز لائٹ کو لیفٹ کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو کائرل سبسٹانسز ہوتے ہیں تو یہ پلین پولرائز لائٹ کی روٹیشن کی پراپرٹی رکھتے ہیں، اور لائٹ کی باقاعدہ جو ہے وہ ان میں روٹیشن ہوتی ہے۔ تو ایسے آئسومر جو لائٹ کو رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف روٹیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہم آپٹیکل آئسومرس کہتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں آپ نے سنا ہوگا، مینشن کر لیا کہ آپٹیکل کا تعلق لائٹ سے ہے، لیکن اس میں ہم عام لائٹ نہیں، پلین پولرائز لائٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو سبسٹانسز پلین پولرائز لائٹ کو رائٹ کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں یا لیفٹ کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں، ان کو ہم آپٹیکل آئسومرس کہتے ہیں، اور اسی فینامینن کو، اس پراپرٹی کو ہم آپٹیکل آئسومیرزم کہتے ہیں۔ تو یہاں سے میں تھوڑی اس کی ریڈنگ بھی کر لوں۔ لائٹ فرام آرڈنری الیکٹرک لیمپ از کمپوزڈ آف ویوز وائبریٹنگ ان مینی ڈفرینٹ پلینس۔ جیسے یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بہت ساری، یعنی ہر طرف یہ اس کی جو ویوز ہے وہ ڈسپرس ہوتی ہے، ہر طرف اس کی ویوز جو ہے وہ جاتی ہے۔ When it is passed through Nicol prism or polarized lens, light is found to vibrate in only one plane۔ جب آپ نائکول، یہ دونوں نائکول پرزم ہیں، ان میں سے آپ عام لائٹ کو، آرڈنری لائٹ کو پاس کریں گے تو یہ بیسیکلی یونی ڈائریکشن میں آ جائے گی، جس کو ہم پلین پولرائز لائٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ پورا پروسیس کس میں ہوتا ہے؟ اس کا جو اپریٹس ہوتا ہے اس کو پولریمیٹر کہتے ہیں، جو عام طور پر لیب کے اندر اویلیبل ہوتا ہے۔ تو پولریمیٹر آپ
मतलब कॉलेज की किसी भी कॉलेज की लैब में हम देख भी सकते हैं। उसके अंदर ये क्वालिटी है कि लाइट का सोर्स होता है, आगे प्रिज्म होते हैं, और फिर प्रिज्म की मदद से वो लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होती है। अच्छा, इसके बाद अगला प्रोसेस ये होता है कि जब ये प्लेन पोलराइज लाइट हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस में या कायरल सब्सटेंसेस के सोल्यूशन में पास करते हैं। सोल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। लेकिन वो सम कंपाउंड कौन से होते हैं जो जिनमें कायरल एसिमेट्रिक कार्बन हो या जिनमें कायरलिटी होती है, या जो कायरल सब्सटेंसेस होते हैं। बाकी दूसरे सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जो है वो कायरल सब्सटेंसेस में होती है। तो जब ये प्लेन पोलराइज लाइट कायरल सब्सटेंसेस में या उनके मतलब सॉल्यूशन में हम पास करते हैं दीज कंपाउंड, तो वो रोटेशन शो करती है, राइट की तरफ रोटेट हो जाती है या फिर लेफ्ट की तरफ जाकर रोटेट होती है। तो दीज कंपाउंड आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे सब्सटेंसेस को जो प्लेन पोलराइज लाइट को पोलरीमीटर के अंदर राइट की तरफ रोटेट करते हैं या लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं, और इसी फिनोमेनन को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो ये इसकी पूरी डायग्राम है, ठीक है ना। ये लाइट की रोटेशन आपको यहाँ आप देख सकते हैं पोलरीमीटर में। और पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, जैसे मैंने पहले मेंशन कर दिया, पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है पोलरीमीटर। जैसे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है पोलरीमीटर, ठीक है ना। अगली चीज़ क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अब आप देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिविटी इन अ कंपाउंड इज डिटेक्टेड एंड मेजर बाय मींस ऑफ पोलरीमीटर। इसको हम किसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं, पोलरीमीटर की मदद से, जैसे मैंने पहले भी मेंशन कर लिया। आप क्या करेंगे, पोलरीमीटर में सोल्यूशन रखने की जगह होती है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस है, ठीक है ना, उनका आप सोल्यूशन बनाकर वो आप वहाँ पर ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है पोलरीमीटर के अंदर, उसमें आप रखेंगे, और फिर उसी से आप प्लेन पोलराइज लाइट या पोलराइज लाइट पास करेंगे, ठीक है ना। तो जब उस सोल्यूशन में प्लेन पोलराइज लाइट पास होगी तो वो या तो राइट की तरफ रोटेट हो जाएगी या फिर लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाती है, और बाकायदा वहाँ पर स्क्रीन में वो रोटेशन जो है वो आपको नज़र आएगी। अब इसमें यह होता है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस लाइट को राइट की तरफ या क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस इस लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं तो फिर उनको लेव रोटेटरी कहते हैं, ठीक है ना। द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट इन ए क्लॉकवाइज इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट, जो लेफ्ट की तरफ रोटेट करने वाले होते हैं उनको फिर लेव रोटेटरी कहते हैं, और आमतौर पर लेव रोटेटरी जो है इनको हम नेगेटिव साइन से या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। The magnitude of rotation is in degrees is referred to as observed rotation। अब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो कितने डिग्री तक इस लाइट को रोटेट करता है, वो हर एक कंपाउंड की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है या अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, और उसी से हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिटी में भी हेल्प मिलती है, तो उसको हम डिग्री ऑफ रोटेशन या ऑब्जर्व रोटेशन कहते हैं। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि जितने हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं या आइसोमर्स होते हैं, तो इनकी हमारे पास दो फॉर्म होती हैं। जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और जो लेफ्ट की तरफ करते हैं उनको हम लेव रोटेटरी कहते हैं। यहाँ पर ये कि the isomer which rotate the plane of polarized to the right in a clockwise is known as dextrorotatory। ये वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज इज नोन एज लेव रोटेटरी, उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर की एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है। इन एग्जाम्पल में क्या है, एक हमारे पास होता है लैक्टिक एसिड, ये कॉमन नेम है, वैसे इसका पूरा नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। अगले स्लाइड में आप इसकी बाकायदा जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देख लेंगे। तो जो हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है इसके फिर मुख्तलिफ आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होते हैं।
इट कंटेन वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और ये ऑप्टिकल क्यों है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है, और एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है, जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो। तो लैक्टिक एसिड में भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद है, जिसकी वजह से इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। 2-3 dimension structure are possible for lactic. These structure are not identical because they can be superimposed. They cannot be superimposed on each other. जितने हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है ना। जैसे अगर इनका मिरर इमेज आप उस कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर रखेंगे, मिरर इमेज आप उसके ऊपर रखेंगे, तो वो बराबर नहीं आएंगे। वन ऑन द मिरर इमेज ऑफ अदर सच एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म्स कैन ऑप्टिकल आइसोमर एंड कॉल एनंशियोमर। और वो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के, उनको हम एनंशियोमर्स भी कहते हैं। Thus, 3 forms of lactic acid are known. 2 are optically active when 1 is optically inactive. अब अगले स्लाइड में इसकी ये पूरी स्ट्रक्चर, ये पूरी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। लैक्टिक एसिड में ये होता है कि हमारे पास 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डॉट एंड विच फार्मूला। जैसे ये विच की शक्ल जो है ना, इसकी वजह से हम इसको डॉट और विच फार्मूला कहते हैं। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है जो कि आप मतलब देख सकते हैं। इसमें ये होता है कि यहाँ डॉट का मतलब ये नहीं होता इन्हें कि ये बॉन्ड नहीं है या बॉन्ड, ये बाकायदा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन डॉट का मतलब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे 3D स्ट्रक्चर को, तो जो ग्रुप आपके बिल्कुल आंखों के सामने आएंगे, ठीक है, जो बिल्कुल आपके आंखों के सामने आएंगे उसको हम किससे, डॉट से। और जो इसी तरह विच की फॉर्म में आएंगे वो आपकी आंखों के सामने वाला ग्रुप होगा, और जो डॉट की फॉर्म में है ये आपके मतलब आंखों से जो पीछे उस तरफ जो ग्रुप आ रहा है ये जाहिर करता है। तो ये जब आप इस स्ट्रक्चर को दरमियान से पकड़ेंगे तो ये वाला ग्रुप बिल्कुल आपके आंखों के सामने आ जाएगा और ये इसके पीछे आपको नज़र आएगा। तो इसी तरह ये एक 3D स्ट्रक्चर है, उसको हम डॉट एंड विच फार्मूला कहते हैं। अब देखें ना, ये जो दोनों एनंशियोमर हैं, इसको अगर आप इस डॉट और विच फॉर्म में नहीं लिखते तो इसी तरह सिंपल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ये एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके साथ ये 4 डिफरेंट ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं। अगर ये OH का ग्रुप यहाँ पे है, इस साइड पे अटैच है, तो ये पॉजिटिव एसिड है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब जैसे मैंने पहले वाज़िह किया कि ये लाइट को किस तरफ रोटेट करेगा, ये लाइट को रोटेट करेगा राइट की तरफ। लेकिन अगर ये OH का ग्रुप, जैसे इसका मिरर इमेज ये बनता है, तो अगर ये OH का ग्रुप यहाँ पे आ गया तो ये फिर लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, जिसकी वजह से हम इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करें, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप नोट कर ले कि अगर हम इसको उठाकर इसी तरह, ये जो मिरर इमेज है ना, इसी को हम उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो OH के ऊपर आ जाएगा, और OH का ग्रुप जो है वो H के ऊपर आ जाएगा। तो ये पूरे एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, लिहाजा दे आर नॉट ना सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और इन दोनों को नॉन सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेज होते हैं, जैसे मैंने पहले स्लाइड में मेंशन किया है, इनको हम एनंशियोमर्स भी कहते हैं। तो यहाँ से आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। लैक्टिक एसिड के जो हमारे पास आइसोमर्स है, एक पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है। इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट इन ए क्लॉकवाइज, इस कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एक ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक इसका लेव रोटेटरी है। तो नेगेटिव लैक्टिक एसिड, इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लेव रोटेटरी। इसको हम क्या कहते हैं, लेव रोटेटरी कहते हैं। अब इसमें सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हम ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये लेव रोटेटरी ये इक्वल अमाउंट में ले लें। इक्वल अमाउंट का मतलब क्या है कि 50% हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो और फिर 50% जो है वो लेव रोटेटरी भी हो, तो फिर लाइट किस तरफ जाएगी। जाहिर बात है कि ये लाइट को किस तरफ रोटेट करेंगे, राइट की तरफ। ये लाइट को किस तरफ रोटेट करेंगे, ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे। तो अगर हम इनकी इक्विमोलर क्वांटिटी ले लें या 50-50% क्वांटिटी ले लें, तो फिर लाइट जो है वो सीधी पास होगी, यानी फिर रोटेशन शो नहीं होगी।
और अगर रोटेशन शो नहीं होती तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऐसा मिक्सचर कि जिसमें बाकायदा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं लेकिन वो लाइट को रोटेट नहीं करते, लाइट बिल्कुल सीधी पास होती है, तो इस मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये पेपर में आती है कि लैक्टिक एसिड के आइसोमर्स कौन कौन से हैं, या लैक्टिक एसिड जो है रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। डायग्राम आपकी मर्ज़ी, अगर आप ये डायग्राम ड्रा नहीं कर सकते या इसमें आपसे गलती होती है या ड्रा करने में ये दोनों डायग्राम मुश्किल हो, तो फिर आप ये दोनों डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कर ले कि वो वाले डायग्राम का तरीका भी आपको आना चाहिए। इसके बाद आप देखें, एक हमारे पास होता है टार्टारिक एसिड होता है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका नाम होता है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, यानी ये 1 2 और ये 3 ये 4। तो 2 कार्बन और 3 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल का ग्रुप है, तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन कार्बन के लिए है 1 2 3 ये 4 ब्यूटेन डाइविक एसिड। और चूंकि इसमें एसिड के दो ग्रुप होते हैं तो इसको डाइविक एसिड कहते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम क्या है? टार्टारिक एसिड होता है। और ये टार्टारिक एसिड किस में पाया जाता है? ये आमतौर पर इमली में पाया जाता है। इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सोर होता है। तो इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि अगर हम इस कार्बन को कंसिडर करेंगे तो एक ग्रुप ये आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा, एक, और ये पूरा एक ग्रुप काउंट होगा यहाँ से यहाँ, ये पूरा एक ग्रुप होगा। तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर आप इस कार्बन को कंसिडर करेंगे तो इसी तरह ये पूरा एक तरफ एच आ जाएगा, एक ओ एच आ जाएगा, नीचे COOH आ जाएगा, और ये पूरा एक ग्रुप कंसिडर होता है, ये पूरा। तो इसके साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच और इसके साथ भी है। तो इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद है। 4 फॉर्म ऑफ टार्टारिक एसिड आर नोन। इसके जो आइसोमर्स है, जैसे ये तो आप देखें ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H है, तो ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब या मीनिंग क्या है? जैसे मैंने पहले बताया है कि ये लाइट को किस तरफ रोटेट करेगा, ये लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा। ये इसका मिरर इमेज है। मिरर इमेज में आप देखें तो OH की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, तो ये नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब ये है कि ये लाइट को किस तरफ रोटेट करेगा, ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। फिर यहाँ से एक चीज़ आप देखें कि ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है और ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। और अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें तो ये एक दूसरे के भी क्या होते हैं, ये मिरर इमेज एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनते हैं। तो ये वाली साइड अगर लाइट को राइट की तरफ रोटेट करे तो ये लेफ्ट की तरफ करेगा, क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसी तरह ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म्स है, या ये रेसिमिक। अगर हम इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले लें तो ये रेसिमिक बन जाए। और ये जो फॉर्म है जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम मीज़ो फॉर्म कहते हैं। क्यों? ये अगर यहाँ पे आप मिरर रखते हैं तो ये एक दूसरे के क्या बनेंगे, ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि टार्टारिक एसिड contain two asymmetric carbon atoms. Four forms of tartaric acid are known. Two of them are optically active and two are optically inactive. ये optically inactive है, क्योंकि ये अगर ये वाला पार्ट लाइट को राइट की तरफ करेगा तो ये लेफ्ट की तरफ करेगा। तो लाइट जो है वो इसमें सीधी पास होती है, लिहाजा इस फॉर्म को हम मीजो फॉर्म भी कहते हैं। द ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एज एन ऑब्जेक्ट टू इट्स मिरर इमेज, बट दैट इज दे आर एनंशियोमर। ये एक दूसरे के एनंशियोमर हैं, ठीक है ना, या आइसोमर्स है। लेकिन ये वाली जो फॉर्म है टार्टारिक एसिड की, इसको हम मीजो फॉर्म कहते हैं। और मीजो फॉर्म में ये क्वालिटी होती है कि इट इज़ ऑलमोस्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये सारी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। इसमें से मेन चीज़ें जो आपको समझनी है वो ये कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, और इसी तरह जो टार्टारिक एसिड है उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं। बाकी इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको वो सारी थ्योरी आती है लेकिन स्ट्रक्चर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आगे जो है ना इस चीज़ को एक्सप्लेन करना आपके लिए पेपर में मुश्किल हो जाए। तो आम तौर पर इसमें देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ टार्टारिक एसिड के नाम
या इनके स्ट्रक्चर आ सकते हैं, या लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर के नाम या इनके जो स्ट्रक्चर हैं ये भी आ सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ तक आप कर ले। कल अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मैं आपको आइसोमर के इन्हें जो स्टीरियो आइसोमर है उसकी दूसरी टाइप बताऊंगा, जिसको ज्योमेट्रिकल या सिस्टम आइसोमर कहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।